Amidst a huge row over a scheme that promises a monthly stipend to unemployed women, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has announced a new scheme that offers a monthly honorarium of 18,000 rupees to Hindu and Sikh priests. The former Delhi CM said the registration for the Pujari Granthi Saman Yojana will begin soon. Addressing a press conference, Kejriwal described the priests and Granthis as custodians of cultural and religious traditions. He said this is happening for the first time in the country. The priest is a class that has carried forward rituals from generation to generation. They never paid attention to their family and we never pay attention to them. Arzu Seth is joining us for more on this story. Arzu, give us more details about this new scheme which has been brought in by the Delhi government. Well, today ahead of the Delhi Assembly elections, there were two big announcements that earlier also that was being made by the Arvind Kejriwal, and this time also another scheme that was announced, and this is for the Hindu and the Sikh priest. Also, the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that the registration for the Pujari Granthi Saman Yojana will start from tomorrow, and he himself will be going to the Connaught Place Hanuman Mandir to meet the priest and also to register them for this scheme. And also he said, this is happening for the first time in the country. The priest is a class that have carried forward the rituals from generation to generation. They have never paid attention to their families and we never paid attention to them. Also Kejriwal said that we would kick-start the scheme after visiting the Hanuman temple in Delhi's Connaught Place. So earlier, but we have seen how the Delhi LG have announced the inquiry for the Mahila Saman Yojana, and saying that they are gathering their personal information to get the benefit of their votes. So these are the allegations that were put up on the Aam Aadmi Party for getting these welfare scheme, and now another big welfare scheme has been announced to target, we can say, Hindu voters. So this remains to be seen, what the next thing that happen in this. But right now we can see the opposition claiming it jumla ahead of the Delhi Assembly elections. All right. Arzu, thank you for joining us with those details. Meanwhile, my colleague has spoken to political leaders on this big story. एक वादे जो है विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सौरभ जी, पुजारी और ग्रंथियों के लिए अब जो सैलरी है या फिर क्या सम्मान राशि देने की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, कह सकते हैं हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ग्रंथी जो हैं हिंदुत्व कार्ड के अंदर आते हैं, और ये जो सब टोकनिज्म है वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरविंद केजरीवाल जो हैं हमेशा जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आते हैं। अगर बात करें तो इस स्कीम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा, और वहीं एक और सवाल भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ इमाम जो है वो मिलने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको 17 महीने से उनकी सैलरी नहीं पहुंची है, तो वहीं पुजारियों को पैसे देने की बात कही गई है। देखिए, इमामों के लिए भी जो है पैसे की दिक्कत नहीं है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, कुछ अफसरों ने बदमाशी कर रखी है, उसको सॉल्व किया जाएगा। और इन सबको जिनके लिए कहा जा रहा है, इन सबको जो है 18,000 रुपये महीना सरकार द्वारा दिया जाएगा। सौरभ जी, एक और इशू जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले उठ रहा है, वो है रोहिंग्यास का मुद्दा। और कल भी 8 जो रोहिंग्यास हैं बांग्लादेशी, उनको अरेस्ट किया गया है। आज भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह पुरी को अरेस्ट करना चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीति बहुत देखी जा रही है इस मुद्दे पर। देखिए, हरदीप पुरी के पास तो सबके आइडेंटिफिकेशन है। उन्होंने तो खुद ट्वीट करके बताया था कि सबको की केंद्र सरकार फ्लैट देगी, बेसिक सहूलियतें देगी, सिक्योरिटी देगी, तो उनके पास तो पूरी लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट शेयर करें दिल्ली पुलिस की। देखिए, बिल्कुल पिंकी, अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो आज किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित है, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ओर से एक बड़ी स्कीम आज लागू की गई है, जिसमें पुजारी ग्रंथी योजना स्कीम लागू की गई है। 1800 रुपये हर महीने हर पुजारी को ग्रंथी देने का वादा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है, ये स्कीम तो करते नहीं है, तो चुनाव के पहले हर आदमी स्कीम अनाउंस करता है। अभी आप देखिएगा, कोई 7-8 दिन पहले इनके घर के बाहर जो वक्फ बोर्ड में जितने भी मौलवी हैं जिनको दिल्ली सरकार से मिलती है, उनको तो ये 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी तनख्वाह पर कहाँ चलाएंगे? जो आपने ऑलरेडी कमिट कर रखा है उनको तो दे दो। आप नई स्कीम लाए हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। जो अभी तक तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, आप दिल्ली के करीबन 38
कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के सपोर्टेड हैं। आप अगर पता करिएगा कि हमारे प्रोफेसर्स को 6-6, 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो आप जो अपनी कमिटमेंट है उसको तो पहले पैसा दो, फिर उसके बाद नई स्कीम करना। ये हो क्या गया, इतने बौखला गई है, माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, कि वो इसी चक्कर में लगे हैं कि कोई कहीं छूट ना जाए, जिसको हम कोई ऐसा सपना या वायदा ना दिखा पाए। वायदा पूरा होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, वोट पड़ जाए हम किसी का फायदा कर लें। देखो साहब, आप अगर ये करना चाहते थे तो 10 साल से आपकी सरकार है ना, 10 साल से आपने क्यों नहीं किया? 10 साल से आपने हमारे पुजारियों को, हमारे ग्रंथियों को क्यों नहीं अपनी तरफ से दिया? आप बात कर लेते, एसजीपीसी से बात कर लेते, मंदिर की समितियों से बात कर लेते। जैसे मैंने कहा कि जो मौलवी जिनका कमिटमेंट है आपको देने का, उन तक तो दे नहीं पा रहे हो, प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, तो ये कहां से लाओगे? अपनी सरकार के अभी जहां जहां आपके पैसे देने वहां तो आप पैसा पूरा नहीं कर पा रहे हो, नए खर्चे कहां से पूरे करोगे? तो संदीप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है? पहले महिला योजना जो है वो जारी की गई, उसके अलावा जो है अब पुजारियों को साधने के लिए, ग्रंथी को साधने के लिए चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है, ये कोई चुनौती नहीं। देखिए, हर आदमी अच्छी सरकार चाहता है, हर आदमी चाहता है काम हो। ठीक है, आप किसी की तनख्वाह दे रहे हैं, किसी का इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा ये कि जन व्यापक के लिए आप क्या कर रहे हैं? वही पुजारी, वही ग्रंथी सड़कों पे भी चलते हैं, वही पुजारी, वही ग्रंथी हवा भी जो जहरीली कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो आज पानी हर जगह गंदा आ रहा है उसको देख रहे हैं, सफाई का जो बुरा हाल है जो देख रहे हैं, मंदिरों में भक्त जाते हैं, क्या उन कूड़ों के थ्रू जाएंगे? आप गुरुद्वारों में जाएंगे तो जो टूटी सड़कें हैं, जो कचरा हर जगह भरा हुआ, उसके थ्रू निकल कर जाएंगे। आज बेरोजगारी का आप हाल देखिए ना। मैं आपको साधारण नई दिल्ली की बताता हूँ। नई दिल्ली में पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो मस्टर रोल में 3 या 4 हज़ार लोग लग जाया करते थे, लोगों को काम मिल जाया करता था। आज एक मस्टर रोल नहीं बन रहा है। आपने कहा था कि हम जितने कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हैं उनको परमानेंट कर देंगे, एक को नहीं परमानेंट कर पाए। वही परमानेंट हो रहे हैं जो पुरानी स्कीमों के अंदर परमानेंट हो रहे हैं। आपको याद है बीच में उन्होंने कुछ अनाउंस किया था कि जहां 15 या 20 हज़ार को परमानेंट करना था, 300-400 को परमानेंट किया। मतलब करना क्या था, किया क्या आपने? पहले वो सब वायदे तो पूरे करिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स क्या होंगी? इसका तोड़ आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारा तोड़, इनका कोई तोड़ नहीं। हम तो दिल्ली बनाई है हमने दिल्ली में रोजगार दिया, हमने विकास दिया, हमने सारा वो काम किया। इनका तो मैं बल्कि कल या परसों में 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें जितने इन्होंने क्लेम किए थे उसमें जो सफेद इनका झूठ है उसका मैं उल्लेख करूंगा। आज आपने ये स्कीम के बारे में बात की है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, अभी नहीं है हमारे। देखिए अभी 2-4 दिन पहले होना था। एक्चुअली में दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। 2 तारीख को जब हमारा इंटरनल मॉर्निंग खत्म हो जाएगी उसके बाद करेंगे। आप भी मानेंगे बहुत बड़ा नेता हमारा गया है, तो उसके दुख में हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम वायदे करेंगे ये वो है जो दिल्ली को न केवल आज बनाएंगे, अगले 10 या 20 साल की दिल्ली का निर्माण करेंगे। इनकी तरह नहीं कि काम कुछ नहीं किया, केवल इधर उधर जहां लगता है कि उनको दिक्कत होती है वहां थोड़ी राहत देने की कोशिश कर दो, 2-4 रुपए किसी के जेब में डालने की कोशिश, और उसमें भी धोखाधड़ी। जो जैसे अभी मैंने जो केस फाइल किया एलजी साहब के पास, एलजी साहब ने आज उस पर इंक्वायरी करवाई। आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो केस आपने फाइल किया जिसपे इंक्वायरी की बात की गई है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और संदीप दीक्षित जो है वो बीजेपी के इशारे पे सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, तो प्रूव कर दें बीजेपी के इशारे पर। जितना कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है ये कभी जिंदगी में कर पाए हैं? ये वही पार्टी है, मैं आपको वो इश्ताहार भी दिखाना चाहता हूं, जरा देना, जिसने आज कुछ साल पहले लिखा था पीएम के लिए मोदी, सीएम के लिए केजरीवाल। कांग्रेस ने तो कभी नहीं लिखा। जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करे वो किसी और पर क्या उंगली उठाएगा बीजेपी की बात करने के लिए? सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब भी दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ती है तो सीधे सीधे कांग्रेस को हराने के लिए लड़ती है। ये देखिए, मैं वो एडवर्टाइजमेंट भी आपके दिखाना चाहता हूं, आपके पास भी होगा ये। जब भी चुनाव लड़ती है बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती है। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जहां आम आदमी पार्टी मैदान पे उतरी हो और बीजेपी जो प्रमुख पार्टी थी वो हारी हो। उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया, गोवा में कांग्रेस को हराया, गुजरात में कांग्रेस को हराया, हर जगह ये जाते हैं केवल कांग्रेस को हराने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मदद बीजेपी कांग्रेस कर रही है या आम आदमी? एक और सवाल है, क्योंकि वोटर लिस्ट का मामला जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और खास तौर पे केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स को जो है वोटर लिस्ट के नाम गायब किए जा रहे हैं। संजय सिंह की पत्नी का नाम गायब करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा तमाम जो वोटर्स हैं उनके नाम को हटाने का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए मैम, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये काम करती हैं, हम आज की नई बात नहीं है, कांग्रेस भी इसमें रही है।
जब लिस्टें आती हैं, हर कार्यकर्ता का काम होता है लिस्टें चेक करो। आपके पास आज कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, कोई बचा नहीं, तो आप क्या टेस्ट करोगे? भाई आपकी किसी की वाइफ का या किसी का कटरा है तो आप उसको चेक करा दो ना। लेकिन ये भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज विकास की बात करने लगे हैं। लोग आज कहने लगे हैं कि तुमने जो 30 या 70 कॉलेज बनाने थे वो क्यों नहीं बनाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.